السلام علیکم، خبرار آؤٹ ڈورز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں پیش خدمت ہے مغل دربار. حد ادب گستاخ، اس پہ گستاخی یہ کنٹینیوٹی ہے ہماری. اب بیہودہ کنٹینیو. ਭਾਜੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਦ ਦੇ ਤੂੰ بیٹھے کیوں ہوئے؟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਬੈਠਾ بھائی کیا ہوتا ہے؟ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ آپ کا کیا حال ہے؟ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ایسے تو ادھر بیٹھا ਮੈਨੂੰ پتا سی آپ کا کیا حال ہوگا بادشاہ سلامت اسے ادھر کیوں نہیں بٹھاتے؟ نہیں کیسے ہیں آفتاب صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ خیریت سے؟ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. آپ سنیں پچھلے دنوں چوگان کھیلتے ہوئے گر گئی تھیں؟ ہے کی کھیل دے چوگان کھیلتے ہوئے جی میں گر گئی تھی اور مجھے چوٹ بھی آئی ہے. اوہو، ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਗਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ کہاں سے گرے؟ ਚੁਗਾਨ ਤੋਂ چوگان. چوگان ہے کیا؟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ پولو کی ابتدائی شکل چوگان ہے. ਓਏ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਪੋਲੋ ਪੋਲੋ ਹੋਇਆ ہم بھی چوگان کھیلنے گئے تھے. کو ہاں ہوں نہیں کر لیا یار دوبارہ نہیں کر. ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਹੂੰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ہم بھی چوگان کھیلنے گئے تھے. پھر گھوڑا بدک گیا. بیچارہ ہم بھی گئے تھے صبح چوگان کھیلنے. آہا، ظفر اقبال کو پیرافریز کریں. ہم بھی گئے تھے گرمی بازار دیکھنے، ہاں وہ بھیڑ تھی کہ چوک میں تانگا الٹ گیا. وہ بھیڑ تھی اچانک گھوڑا بدک گیا. واہ 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 واہ، شہنشاہ معظم آپ تو باقاعدہ شاعر ہو گئے ہیں. آپ زیادہ اچھا شعر پڑھے تھے، ان کو تو آتا ہی نہیں ہے. اچھا جتنے میری بستی ہوئی گل بڑی تسلی نہ سن دینے اگلے. اچھا ملکہ عالیہ یہ بتائیے، بادشاہ ایتھے فروٹ لا کے بیٹھا ہے. ہم شہنشاہ ہند ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ شہنشاہ ہند ہیں. میں نے کیوں نہیں لگ رہا؟ کسی کو نہیں لگ رہا. شہنشاہ ہند ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم معیشت سنوارنے کے سفر پہ نکلے ہیں. یوں کہیے کہ ہر ایک سے مانگتے پھر رہے ہیں آپ. اس طرح معیشت نہیں سنورے گی، یقین کیجئے. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੇਗੀ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ਠੀਕ ਹੈ بتا. ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਗਨ ਵੱਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਾਰੀ کیسے؟ ਲੈ ਕੈਸੇ ਚੁਗਾਨ تو ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ آفتاب صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا جی چاہتی جی جی ضرور. جی 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 ادھر ہاتھ فوری سٹینڈ تے آ گیا اور ایک چھوٹی ہوندی ایک ਵੱਡੀ ہوندی یار کیوں چھوٹی بڑی کیسے ہو جاتی؟ پتہ نہیں بھائی ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ایٹم کر دے ہو اچھا جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی. میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ تیموری نسل سے کیسے ہیں؟ ان کے پردادے کا تعلق تیموری نسل سے ہے اور پردادی ہیں فرام چنگیز خان. یعنی بڑا لیتھل کمبینیشن ہے. اور تیمور اپنے آپ کو سیف الاسلام یعنی اسلام کی تلوار کہا کرتا تھا. تو سر کیا ان میں وہ کوالٹیز ہیں کوالٹیز لیتھل کومبو والی؟ یہ اس کی ایک ہلکی قسم ضرور تھے، لیکن ان میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں. تیمور نے تو تقریباً 2.25 کروڑ انسانوں کو تہ تیغ کر رکھا ہے. وہ تو ایسا ظالم اور سفاک شخص تھا. جب یہاں آیا پاک پتن دیپال پر اس نے اینٹ سینٹ بجا دی، دلی کی اینٹ سینٹ بجا دی. یعنی تقریباً 1 لاکھ ہندو قیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا. اس سے خطرہ تھا کہ یہ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ اور حکمرانوں کے ساتھ نہ ملے، یعنی راجاؤں مہاراجاؤں کو سپورٹ نہ کریں تو انہیں مروا دیا. اور وہ انسانی سروں کے مینار بنایا کرتا تھا. سب سے پہلے اس نے تیمور نے یہاں پر 14ویں صدی کی بات ہے، انڈیا میں سب سے پہلے کھوپڑیوں کا مینار اس نے بنایا تھا. تو سر یہ تو ورنہ زیادہ تر چنگیز خان کے ساتھ افیلیٹ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ خون تو وہی تھا نا. دے میڈ اے اسٹیٹمنٹ ویئر ایور دے وینٹ کہ کھوپڑیوں کا مینار دور سے نظر آئے کہ لوگ پوچھیں کہ یہ کون ہے تو پتہ چلے کہ انہوں نے بغاوت کی تھی. اور بہت سے ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ چنگیز میں کچھ خوبیاں بھی تھیں. چنگیز وہ میں تو حکمران جو ریزسٹ نہیں کرتے تھے، آرام سے اس کے ساتھ معاملہ کر لیتے تھے، ان کو وہ قتل نہیں کرتا تھا. بالکل نہیں کرتا. تو تیمور کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ تباہی میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا، قتل و غارت میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا. وہ اس کا شوق دیکھو کہ میرا لشکر جب چلے تو زمین ہلنی چاہیے. اس کا لقب ہے ٹیمرلین دا ارتھ شیکر. لیم نے تو اپنی کتاب کا نام یہ رکھا ٹیمرلین دا ارتھ شیکر. تاریخ ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے بھی چتوڑ کی جنگ کے بعد میں چتوڑ میری جان نہیں چھڈی. ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਚਤੌੜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ہم نے لا تعداد جنگیں لڑی ہیں، لیکن یہ چتوڑ کی جنگ ہمارے حلق کی ہڈی بن کے رہ گئی ہے. ایک چتوڑ کی جنگ ہی نہیں شہنشاہ معظم، اور بہت ساری پور رکھی ہیں آپ نے. کون سی پور رکھی ہیں آفتاب صاحب؟ کون سی پور رکھی وہ پہلے غیر پارلیمانی گفتگو ہو رہی ہے وہ تو پوچھی جا رہی ہے سر کون سی پور رکھی؟ نہیں جو پور، اب بعض چیزیں ہوتی ہیں جیسے پور نا،
اب पंजाबी शनास जानते हैं कि पोरना में इस कदर जामयत है कि कोई और लफ्ज़ उसकी जगह ले ही नहीं सकता। ਕਿਉਂ ਜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਭੋਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਮੀਅਤ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮ तो हरकत भी तो फजूल सी। जैसे इनसे याद आ गया, जैसे चवल है, चवल एक ਭਾਈ ਤੂੰ ਭੋਰਨਾ ਕਹਿ ਲਾ ਤੂੰ मैं आपको नहीं कह ਜਿਹੜਾ रहा, ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਲ ਨਾ ਬਣਾ नहीं, ਪੁੱਛ ਭਾਈ नहीं, ਭੋਰਨਾ मैं तुम्हें नहीं कह रहा चुगत, तुम्हें नहीं कह रहा। अच्छा जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक लफ्ज़ है बड़ा गैर पार्लिमानी है, बैड साउंडिंग वर्ड है, चवले मारना, लेकिन इस कदर जामयत है उसके अंदर भी, कोई और लफ्ज़ उसकी जगह ले ही नहीं रहा। मैंने बड़ा तलाश किया है। तो आप कुछ कह रहे थे आफ्ताब साहब? इजाज़त है? नहीं मलिका, आप हमारी इजाजत के बगैर एक नामहरम से किस तरह गुफ्तगू कर रही हैं? जिंदर सुभानी। अच्छा, महरम का सुन लें। इनके हरम में 5000 से ज़ायद ख़वातीन थी, सर उनमें कौन कौन थी? लौंडियाँ, गुलाम, जिस जिस इलाके को फतह किया वहाँ की मफतूहीन की, सरदारों की बेटियाँ, बादशाहों की बेटियाँ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਸੀ 5-5000 ਹਰਮ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ 5-6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ जिंदर सुभानी, हमें आपसे ये उम्मीद न थी। तेन सारा पता सी एमी बहुत चलाक न मान हरम देख के तो तू मुतासर हुई सन कुछ जंगो जदल का वाकया बताइए। ਚਤੌੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸਾਰੀ शकील साहब, जी आप भी तो तारीख के स्टूडेंट रह चुके हैं, अब भी हमारे बारे में कोई बात जानते हैं तो बताइए। आप में कुछ खूबियां भी थीं, कुछ खामियां भी थीं। एक दफ़ा जहांगीर ने गुस्से में आकर एक शख्स की खाल खिंचवा दी, ओह, टोटल। तो बादशाह को इल्म हुआ। मैं बहुत नाराज हुआ समझ जी जी जी, आपने उसे लिख भेजा कि इस तरह की हरकत मैंने कभी जानवरों, परिंदों के साथ नहीं की, तुमने एक इंसान के साथ कर दी। जिंदा इंसान। माहौल बहुत शकील हो गया है, हमें हंसाया जाए, शाही मस्करे को पेश किया जाए। शाही मस्करे हाजिर हो लाने बोला ढिंग चिक चिकता हचकदारा ढिंग चिक चिकता हचकदारा ढिंग चिक चिकता हचकदारा ढिंग चिक चिकता। आपने तो मस्करे को बुलाया था, ये क्या चीज आ गई? ये शाही खुसरा आ गया है मैं शाही मस्करे। बादशाह सलामत। ये तो मेरा कैमरा कटे, मैं तेरी शाही मस्करे इस कुर्सी के आगे खड़े हो जाओ, कोई ऐसी बात करो आलम पना को हंस हंस के बुखार हो जाए। महफिल को किश्ते जाफरान कर दो। अच्छा जी, ओए किसे किश्ते दे बच्चे महफिल को जाफरान कर दो 7500 ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 7500 ਦਾ ਖੋਤਾ ਹਸਣਾ ਸੀ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲਕਾਲੀਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। 35 ਕੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਚੈਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਊਂਟ ਭੂਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। शाही मस्करे, ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ। ये तो हो गया लिटरेचर, अब हंसाया जाए। ਮੈਂ ਤੇ ਹਸਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ? ਬਾਹਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। कहाँ से आया? ਰੂਸ ਤੋਂ। तो क्या है कौन? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੂਸ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹਾਂ ਜੀ। तो फिर ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। हमें कोई अच्छी अच्छी जुगतें सुनाई जाएं। अगर मलिका इसकी बात पर अब ना हंसे तो इस ना हंजार का सर कलम कर दिया जाए। वाह 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 वाह। ਨਾਵਲ ਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ओए, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦੁੰਬਾ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। यार जल्लाद है किधर? ਜਲਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਰਕਣ ਡਿਆ। ਪਜਾਮਾ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਓਏ ਜਲਾਦ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਓਏ ਆਜਾ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਇਨਸਾਨ। तो ये कौन है? ਇਹੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਰੂਸ ਦਾ ਸਫੀਰ। ਓਏ ਮੈਂ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। मसनद पर तशरीफ रखिए। ਅੱਛਾ ਜੀ। ओह, तेन रेफरी बनने से किने क्या फिक्र हो गया? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਹੁਣ? यहाँ आइए, कैसे तशरीफ लाए? मुझे अजीम शहंशाह जार पीटर द ग्रेट ने भेजा है। और होली बॉल में नहरों पार बैठा सारिया, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मुझे जार पीटर द ग्रेट शहनशाह ने भेजा है। इड्डी ऊंची बोले पीटर द ग्रेट नु भी आवाज जा रही है। उन्होंने आपकी खिदमत में सलाम भेजा है। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਸਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। अच्छा यहाँ बिल्कुल ऊंची बोलता है, यहाँ बिल्कुल मरिया बोलता है। अच्छा रूसी गड्डियां दी आज भी यही प्रॉब्लम है, वो क्या? एक गिर पहला एक पंजवा, बीच कुछ भी नहीं। ओए, ये क्या कर रहे हो? ਰੂਸੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਪਣੀ ਹੁਣ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। रूसी रेडियो ने जोर दी मारन ते जलंधर दी खबरां दे।
ਅੱਛਾ ਰੂਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸਲਤਨਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਫੀਰ ਲਾਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਦਾ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾ ਛੱਡ ਜਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣ ਕਾ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਖਾਨ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਭਰਾਵਾ वो आपके बड़े मद्दा हैं। ਇਹ ਵਾਕਈ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ वो आपके साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ वो इडियट शीट जिसे अपनी लाइनें भूल जाती हैं ना, तो बड़े बड़े एक्टर्स वो फिर बड़ा सारा उनके आगे यूं करके खड़ा कर देते हैं, तो उसको इडियट शीट कहते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर भी वही है ना? टेलीप्रॉम्प्टर, उसके बाद टेलीप्रॉम्प्टर पे तो कंटिन्यूस चलती है। कंटिन्यूस एक चीज चल रही होती है ना, उससे 4 लाइनें नहीं हो सकती। और बड़े बड़े एक्टर्स, अल पचीनो इडियट शीट, मार्लन ब्रांडो। वाह। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? हम आपको बेहतरीन असलहा फराम करेंगे। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ असला है, लेकिन इनकी रिवायत भी बड़ी तगड़ी है, और ख़ास तौर पर गन पाउडर बाबर लेकर आया था सब कॉन्टिनेंट। ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਕੀ ਮਾਰਾ एक गोली मारन तो पहले मेकअप कर देना यार बारूद को कहते हैं गन पाउडर। ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰੂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਪਾਊਡਰ मैं क्या पता नहीं मरने वाला हसीन लगे जरा और बादशाह ने तेरे की लैंड भेजे है ओए काते मार दे और गधे इसे मारना था। गला मन कहते हो उसे कह रहा हूं यार, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੀ? हाय अब वैसे गलती मेरी है मैंने दसिया नहीं कि इनू के मैनू ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਯਾਰ हम आपसे डायमंड और मलबूसात खरीदना चाहते हैं। डायमंड बाजू खरीदी पहले अपने से मलबूसात ले ले पूरा खाना ही खराब हुआ है ਉਹ शहनशाह ਸਾਨੂੰ कपड़े कुपड़े नहीं ले यार ये क्या अच्छे कपड़े पहन रखे हैं उन्हें। ਕੀ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ आपको रेलवे स्टेशन का कैसे पता है? ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ मांगता तो खैर ये हर जगह पे है, हर जगह मांग मांग के इसे शर्म भी नहीं आ रही। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ नहीं आलम पना, ये आपकी बात हो रही है। ये सिग्नल खूब बड़े हैं और आप हमें क्या क्या दे सकते हैं हम आपको आलाते मौसीकी फराहम करेंगे। आलात मौसीकी क्यों जी सन चाहिए ने तुम इंतहाई खुद कफील हो, तुम्हारे पास और है ही क्या आलाते मौसीकी, और क्या है? इसके पड़पोते ने मौसीकी पर पाबंदी लगा दी इंडिया में, औरंगजेब आलमगीर ने। तो जो इन जैसे थे वो बेचारे मौसीकार खान साहबान वो बेरोजगार हो गए। अब रोज सफ़े मातम बिछी होती कि हम क्या करें भाई, हम तो बड़े एफ्लुएंट। अच्छा, इन्हें बहुत आला खाने का शौक होता है, चूँकि महाफिल में जाते हैं, बड़े बड़े रऊसा इन्हें मदऊ करते हैं और वो बड़ी खिदमत करते हैं उनकी। तो फाके जब शुरू हो गए तो एक दिन जुलूस निकाला इन्होंने, तकरीबन 1000 ढाड़ियों ने वाह वाह वाह। दिल्ली की सड़कों पर वो शोर गौगा किया। बादशाह की रिहाइश के बिल्कुल सामने से गुजरते हुए जब शोर मचाया ना उन्होंने, बैन कर रहे हैं, जनाजे उठा रखे हैं, तो झरोके में आके शहनशाह ने पूछा कि ये क्या है? तो कहने लगे कि दुहाई है बादशाह सलामत, दुहाई है, आपने हमें बेरोजगार कर दिया, हमने मौसीकी का जनाजा उठा रखा है, वो आलाते मौसीकी उठा रखे थे, ओह तो हम दफनाने जा रहे हैं। ये सोच कर कि शायद कोई पैथोस क्रिएट हो, कोई दिल में कोई रहम आए शहनशाह के, शहनशाह ने फिलबदी का कब्र जरा गहरी खोदना। वाह वाह वाह। तो सर फिर रिवाइव कब हुआ? फिर जाहिर है शहनशाह के फौरन बाद रिवाइव हो गया, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी ब्रेक थी ना, मुगलों का ये उस्लूब ही नहीं था, मुगलों का स्टाइल था बाबर बाएश कोश के आलम दोबारा नीस्त। वाह। बैठा बैठा यकीन हो रहा की गल अब और आलू गोश्त आलू अस्सी ना जाओ बस इसके दादे का शेर है बाबर बाएश कोश। ਬਾਬਰ ਬਾਇਸ਼ अच्छा तेरा दादा भी मैं समझा खाची सी ये गल करने वाली है बाबर आए गोश्त क्या खूबसूरत बात कही है दोबारा अता कीजिए बाबर बाएश कोश के आलम दोबारा नीस्त। आफ्ताब साहब, इसका मतलब क्या है? कि बाबर ऐश वैश कर लो जितने करने हैं, कि दोबारा जिंदगी नहीं मिलनी। और रूसी शहनशाह ਨੂੰ ਪਤਾ तो थे हैं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ।
ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਭਲਾ ਦੌੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਬਣੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। नहीं तोप में डालने लगे क्या गेटअप है यार, देखो ना रास्पुटीन लगता है। ਇਹ ਚਾਹ ਚ ਰਸਪੁਟੀਨ ਡਬੋ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਐਸੇ। ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਲੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਡੀਲ ਡੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ੈਨਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਹਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਏ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਓਏ ਉੱਠ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਸੂ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਰੂਸੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਨੂਤ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਏ ਹਨੂਤ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੁਗਤ ਆਲਮ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 100 ਜੁਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜੇਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਰੂਸ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। अस्सलाम वालेकुम। हाय पल्लू मेरी दोस्त आ गई, कैसी हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठे आप प्लीज, हैव अ सीट। कैसी हो असद सलामत? पल्लू आपका गेटअप कुछ बदला बदला सा लग रहा हाँ मैं वक्त के साथ साथ थोड़ी चेंज देती रहती हूँ। आप सुनाए कैसी हैं? है। मैं ठीक हूँ, थोड़ी चेंज के साथ साथ आपके हस्बैंड लानत डाले उस पर, नाम मत लेना उसका, मेरा दिल दुखा के गया इस दफा। पल्लू आपकी फिर लड़ाई हो गई? लड़ाई तो मेरी चलती रहती है। आप सुनाए क्या सुनाऊं? कैसे हैं आप? इतने उकताए क्यों बैठे हुए हैं? अभी फर्स्ट टाइम मिले हैं, अभी पहला फिक्रा भी नहीं हुआ तो गुस्से में बैठी। क्या प्रॉब्लम है आपको? अगले जन्म च मैं बादशाह नहीं, मैं होस्ट बनना है। जो भी आवे है तेरे पास ही बैठा जावे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सिमटते जावे। जो भी आवे है। आप जैसी वेरिएशन नहीं है किसी के शेर की भी। खुरादिया पढ़ रहा होता है, 2 लाइनें सुनाई हैं, खुरादिया? कान खट्टे कर दिए इसने तो। कान खट्टे। वो दांत खट्टे करते हैं और कान खट्टे। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਲਟੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲਈ ਕਾਨ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਵੈਸੇ ਕੋਡ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तुम अभी तक इधर ही हो? फमला की ठंडी ठंडी छां डोलना। ਪਮਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਡੋਲਣਾ, ਪਮਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਡੋਲਣਾ, ਠੰਡੀ 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 ਛਾਂ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਉਹ ਠੰਡੀ 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 ਛਾਂ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵੇ ਡੋਲਣਾ। ਪਟਿੰਗਾ। बैठ जो डोंकी पंप डांस कर रहा होता है। चलत हाँ जी आलम भला। इन उत्तों दी मेरे हरम च छोड़ दे। खुराक मेरी तरफ आए ना, मैंने तो लॉश में छा दी। वैसे बात बड़ी फ्रेश आज भाई, शादी पे जा रही हो? ईद का मौका है भाई। हाँ ईद हमारी कहाँ, ईद हमारी तो ईदें तबाह कर गए। जो भी मुझे दुर्मट सा मुझे लॉन्ती मिला, जो भी मिला, इतने इतने मुझे छोड़ा ग्रुप जैसे इस बंदे ने मेरे पैर बना दिए। नहीं आपका पहला हस्बैंड तो बड़ा हैंडसम था। हाँ वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो जिंदान सिंह की बात कर। ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। हाँ मान सिंह। ਤੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸਾਰੇ। पंजाबी कल्चर में कहते हैं कि जब प्याला त्रुट जावे तो ठूठा लबदा है। सही, ये ठूठा क्या होता है? ठूठा कच्ची मिट्टी का सिफाल, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਫਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सिफाल मिट्टी का प्याला, उसी को सिफाल कहते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? चप्पन, ए जेड़ा छप्पन कटीटा गाना इदी वेदी बना। ਤੇ ਘੜੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? कड़वंजी। बड़ी तिले वाली जुत्ती पहनी है, ये उसी दुकान से ली है कौन सी दुकान से? जहाँ से ये सोफे लिए हैं। शाही मस्करी हमें नाच के दिखाओ। ਟਿਕ ਟਕ ਟਕ ਦਾ ਟਿਕ ਪਾ ਚਿਕ ਟਕ 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 ਦਾ ਧਿੰ ਟਕ 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 वेलकम बैक। खुदीनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀ जी इत्थे भी। हर जगह ते चांते भी जावांगे उत्थे भी होएगा। आप तो इसके हामी थे। जी मैं हामी हूं डॉक्टर साहब। मैं बात इसलिए तो नजदीक ऐसे बैठा कर रहे हैं हूं। कि इतने उकताए हुए हैं। ये हामी नहीं है ये आपके करीब बहुत। जी, मेरे बहुत करीब बैठे हैं। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੋ। क्या अच्छी शर्ट है, P&M। सर थैंक यू। ਬਹੁਤ ਠੀਕ। ਵੱਡੀ ਤੇਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਓਏ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਦਾ। वो छग्गा होता है। ਅੱਛਾ ਜੀ। मेरा भाई एक दफ़ा छग्गा ले आया था। अच्छा बड़ा उसे कदावर बकरे का बड़ा शौक था। हमारा अक्सर बकरा जो है ना, वो बस बेचारा मासूम सा होता था। तो इस दफ़ा उसने सोचा कि भाई नहीं,
मैं जाऊंगा तो मैं वो तगड़ा बकरा मतलब गधे के साइज का, बोले वो छग्गा था, वो मेरा ख्याल है अगली ईद तक गला ही नहीं वो जूं जूं मेरी वालदा पकाती साथ हर चम्मच के साथ उसको गालियां देती कि ये लेकर आया अपनी तरफ से बड़ा कारीगर बनता है। तो सर जिसके दांत नहीं होते उसको क्या कहते हैं? क्यों भी क्या कहते हैं? था बकरा। नहीं यार आपको पता होना चाहिए। खीरा नहीं तो सर वो छोटा होता है, उसके दांत नहीं होते। खीरा खीर से है ना, खीर means दूध। दूध के दांत। गल्फ में मिडिल ईस्ट पूरे में रिवाज है कि ये जो छोटा खीरा जो है प्रेफर करते हैं। सर क्यूकम्बर को भी तो खीरा कहते हैं। हालांकि उसका दूध ना कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, उसके ऊपर से दूध निकलता है, जब उसको आप रगड़ते हैं ना। इतने मथा ना लाया कर, तन मैं समझाया। नहीं वाकई उसको जब आप हल्का सा रब करें झाग निकलती है ना, वो देखने में लगता है दूध निकल रहा है, तो उस पे खीरा। मान लिया भाई, मान लिया। खीर पेड़े कभी नहीं सुना? सुने कहाँ मिलते हैं? दाजल से। सराइकी में खीर एक्चुअली दूध को कहते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। तो वहीं से खीरे की बात हो रही थी, खीरा। हिंदुओं में भी खीर को ही कहते हैं। और पता गाजियाबाद डुबदा डुबदा बचिया है पिछले दिनों लाहौर बड़ी बारिश भाई हुई। बड़ी बारिश हुई। अंडरपास है ना पाए बल्कि 4-5 जवान मुंडिया ने गाजियाबाद चौक भी लिया। डीएचए डूबने वाला था तो और बाकी लाहौर का क्या बना होगा? सर आपने कभी बकरा खुद वो किया है सिवा? हाँ, छुरा फेरा हुआ है। दुनिया का हर औखा काम कीता होएगा। हाँ छुरा, इसलिए कि मैं अपने आप को आजमाने के लिए कि मैं फेर सकता हूँ कि नहीं। ਸਾਡੇ को पुछ लेंदे च ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। आपको कैसे पता है? सर वेड़ा सिवा करने लगे बड़ा जोर लगता। छुरी अगर लगी हो ना अच्छी जी जी। तो कोई उसको पकड़ने में जोर लगता है। नहीं वो पकड़े हासिल, लेकिन मैं 4-5 दफा मैंने जिबा किया वेड़ा। ਛੁਰੀ ਖੁੰਡੀ ਹੋਣੀ। आपकी नहीं सही सी। छुरी नाकस होगी या उसने जिसने पकड़ना होता है ना उसने सही तरह खींच से के, हाँ। वो जो लटक रहा होता है ना ਉਹੀ ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ। उसी को खींचना, वो चमड़े को खींचना असल चीज है। हाँ जी, वो इस उसको तरह खींचे एक धार से हो गया। कई तो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन वो- 1.5-2 मिनट लग जाते नहीं, लेकिन वो बड़ा पेनफुल होता है कि अगर आप ना सही से फौरन करें। करें हाँ। एक लम्हे में। और पता नहीं कभी जानवर को हथियार दिखाएं ना। सर हम फरंगे आसफिया कर रहे थे शायद। आज सबसे पहले शारजा, ओह हमने दुबई अबू धाबी कर रखा है, आज शारजा और अजमान करेंगे। वाह। शारजा इन फैक्ट इज शारका। शारका। शारका शारका। मीन्स मशरिक, जिधर से सूरज तुलू होता है। अशारका, इसको लोग अल शारका पढ़ते हैं, अल नहीं है, ये अशारका। लाम साइलेंट है फिर? शमसी है ना, ओह यस। अल शम्स नहीं कहते, अल कमर कह सकते हैं, अल शम्स नहीं कह सकते। अशम्स अल कमर, इन लफ्जों को कहते हैं कमरी और शमसी। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। कहाँ पीटीवी? ये शारका पहली दफा सुना है। इनफैक्ट नाम तो शारका था, आपने देखा नहीं कारों पे शारका ही लिखा होता है। अशारका लिखा होता। और उसको भी छोड़िए, जहाँ आते जाते हैं जो सामने बोर्ड्स होते हैं उसमें इंग्लिश में पहले लिखा होता है शारजा, नीचे शारका लिखा होता तो सर शारजा कैसे फिर इसका? कलोकियल, यहाँ का लोकल जो है ना, इसमें इंग्लिश, मिंग्लिश, अरबी, उर्दू सबके असरात जो है ना, और अदायगी में उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कहा शारजा इज बेटर, तो शारजा मुस्तामिल हो गया। लोकल का नवा सा सुने अकलोकी अकलोकियल। है। कलोकियल का मतलब होता है गुफ्तगू वाला। जैसे इराक में कासिम को जासिम कहते हैं। वाह। सो जो गुफ्तगू में इस्तेमाल हो रहा हो। इसी तरह अजमान, अजमान बताइए। अजमान जी थे शो कर गए 5 स्टार। यार मुझे जोग्राफिया ना बताओ, उसका एटिमोलॉजी बताओ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਅਲ ਜਨੂਬ ਅਲ ਜਨੂਬ ਨਾ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਯੱਲਾ ਉਹ ਬਈ। वैसे यार क्या खूबसूरत होटल था, क्या है कहने ना? वाला है। बाई अजमान पैलेस। जी जी जी। जितना हसीन होटल है ना, आप यकीन करें उतना ही शानदार लंगर सी। लंगर से भी ज्यादा। यार लंगर की तरफ तुम जा, सर तुम्हें उसका व्यू, हमें वहाँ सनसेट मिला था। व्यू भी लाजवाब, होटल भी लाजवाब, लंगर भी लाजवाब, सर्विस भी बेहतरीन, लेकिन तुमने इफ्तिखार हमदानी अभी देखा नहीं है। अच्छा जी। कहीं देखे। भाई ही इज अ मैन टू बी विद, ये मेरा वादा है। वो मेरा ख्याल है आगे होंगे, एक आध दिन में उन्होंने वापस आना था, उन्हें वेनिस जाना पड़ा फ्लाई करके, बड़ी इजलत में। ओके। इजलत
मैं इसलिए थोड़ा सा अटका था, ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਰੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ इसलिए कि वो इंतहाई नफीस आदमी। मैंने शकील साहब से ज्यादा नफीस बंदा देखा ही नहीं, आप यकीन करें। क्या बात है। और ये उजलत इनफैक्ट गलत उलाम है, इजलत है। मैं बता रहा था कि उन्हें जाना पड़ा यूरोप, उनके एक दोस्त का इंतकाल हो गया था, तो जब वो आएंगे इंशाल्लाह आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। वैसे उनका डेप्यूटी भी जो बहुत अच्छा अली भाई, वो शाहजी भी एक लाजवाब कैरेक्टर थे। मुझे उनकी सबसे प्यारी बात पता क्या लगी, वो हमारे शो में शरीक भी हुए और उन्होंने चैलेंज भी किया, गाया भी। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और ये शायद अजमान का सबसे बड़ा होटल है, वन ऑफ द बेस्ट। फेयरमाउंट भी सबसे टॉप का होटल। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सारे एक ही कैलिबर के बिल्कुल साथ फेयरमाउंट है और उससे थोड़ा सा पहले शेरेटन है, शेरटन थोड़ा सा आगे पहले है। हाँ, शेरटन जो है ना वो बिल्कुल शारजा और अजमान की सरहद है, और उसके बिल्कुल साथ है कोरल बीच। हाँ जी। कोरल बीच के इंचार्ज भी हमदानी साहब ही हैं। वाह वाह। हम अगला शो कोरल बीच पे करेंगे, जरा मौसम ठीक हो लेने दें, आप देखिएगा कि उसके बाहर मैं खुद देख के आया हूँ, इंतहाई हसीन 150 दरख्तों की कोई अरेंजमेंट है खजूर के, मतलब वो दरख्त यूं लगता है जैसे ऑर्डर पे बनाए गए ना, एक ही साइज, एक ही फर्मे के, निहायत खूबसूरत, और उनकी राहदारी बनी हुई हो ऐसे होते एज बांदर शो कर लफ्ज की तरफ आए। मुझे लगता है कि ये जनूब की वजह से अजमान कहते हैं। नो 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 नो, अजम, अजम से, अजम, अजमी, गूंगा, अरबी और अजमी, वो जो नॉन अरब को अजमी कहते हैं। अजमी वो कहते हैं कि इसे तो ज़बान, इसलिए कि जितनी फसाहत और बलागत अरबी में है किसी और ज़बान में अपेरेंटली है ही नहीं। एक एक लफ्ज़ के 30-30 मुतरादिफात आपको मिलेंगे, सिनोनिम्स मिलेंगे, उसके एंटोनिम्स मिलेंगे, हैरान कर देने वाली, इस कदर मैथमेटिकल ज़बान, लगता है ये मैथ्स है। आप उसकी गर्दानें देखें, उसके मसादर देखें, हैरान कर देगी आपको। वाह वाह वाह। क्या कहना ਵਿੱਚ पता नहीं की कही अच्छा ये बंदा पहले नहीं सी मार तो इतने आगे और मुश्किल हो गया। अच्छा, मेरे इस वक्त मुखातिबीन वो है, वो कैमरा मैन, कैमरे के अंदर जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, कम से कम 10 करोड़ लोग देख रहे हैं। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਡੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ। नहीं यार ये लोग, अच्छा मैं भी कितना गल कर सर आपके साथ 6 महीने मैं अगर कहीं रहूं तो कादरुल कलाम हो जाओ। एक ही वो आपको बहुत सालों से सिखा रहे हैं ये। नहीं, अच्छा जी, एक और लगे हाथों, एक और स्टेट कर लें यूएई की, फुजैरा, जिसको फजीरा कहते हैं ज़्यादा। जीरा बीच भी कहते हैं। फजीरा बीच, इट इज फुजैरा बीच। फुजैरा वो जमेरा है, फुजैरा बीच किधर से आ गया? हाँ जमेरा फजैरा में बीचेस हैं, लेकिन जो मशहूर है ना वो जमेरा। मुझे तो पता कि ये जमेरा बीच की बात कर रहा है, मैं जानता हूँ ये बब्बू है। आई नो बब्बू लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। है कि पिछला जिस तरह ये आप इसको जानते हैं ना, इस जगह हाँ जी हाँ जी ये पिछला हिस्सा पुठा हाथ है। तो जानते हैं आप अपने हाथ की कहाँ पे क्या क्या चीजें? इतने नाड़ा ने हाँ हाँ। बाल ने कुछ थोड़े ਜਿਹੇ। अच्छा सखावत साहब ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा जी, फुजैरा, फुजैरा, फुजैरा का मतलब क्या है? हाँ जी यही पूछ रहे हैं इसमें ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, नहीं मैं तुमसे जानना चाह, कुछ ना कुछ तो तुमने सीखा होगा यहाँ से। फजर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾल्लुक नहीं, फुजैरा नामी नहर है यहाँ पे एक, और बहुत रेयर होता है कि ऐसी जगह पे, ऐसी टोपोग्राफी पे नहरें हों। तो फजैरा चूँकि नहर है यहाँ पे, तो इसलिए इसको अल फजैरा यानी नहर की निस्बत से पुकारा जाता है। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਭਾਅ ਖਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਲ। शकील साहब बड़े प्यारे मासूम आदमी ने। वैसे वाकई तुम्हारे पे असर हो रहा है यार, तुम इस तरह करो, पास्टरनाक को दरमियान में बिठा लो। नहीं यही ठीक है यार बिठा लो प्लीज। मैं थथा ही ठीक है सर। आज पास्टर ने क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई, रोबोट बन के आया अभी। हाँ जी हाँ जी हौली यार ये कहाँ से क्लासेस ली तुमने? मॉस्को से? मैस्को से किलो खून थका आते हैं मैस्को से।
लेकिन एक दिन आएगा ऐसा। अच्छा जी, एक लफ्ज है नमस्कार। नमस्कार। ओहो, मैं पूछ रहा हूँ कोई एटिमोलॉजी को ज़हन में कुछ आता है? इसका ओरिजिन क्या है? स्टार्ट आप हैरान होंगे कि इसका ओरिजिन नमाज है। नमाज। और आप इस पर भी हैरान होंगे कि ये हम पहले कर चुके हैं खबरार में। नमाज मतलब नमाज का एक्चुअल मतलब है दुआ। जी। तो नमाज से नमाजकार, नमाज पढ़ने वाला, दुआ करने वाला, नमाजकार से नमस्कार। नमस्ते भी तो कहते हैं। नमस्ते। इज दैट फ्रॉम मस्त? जी, नमस मीन्स दुआ। नमस्कार फॉर्मल वर्ड नमस्कार है, नमस्ते उसकी शॉर्ट फॉर्म है। जी। साहब तुझे कटिंग क्यों नहीं करा रहे की वजह? तू ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਸੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਈ अगस्त में ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ इससे मैं अपने ड्रामे में कास्ट कर चुका हूँ ਕਟਿੰਗ ਲਈ और इंतहाई प्यारा रोल। पता है क्या, ज्यादातर इसके कपड़े पता क्या होंगे? क्या सर? जो ये आजकल पहने फिरता है, निकरा शॉर्ट्स और साथ मैचिंग शर्ट्स मुकाम और बड़े सॉफ्ट और मजेदार नीचे प्यूमा के। इसको पता नहीं किसने, ये देखो ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये कहीं से इसने स्नीकर्स कहीं से स्नीक आउट किए हैं। चुराए। मतलब रोल मस्त था ਇਹਦਾ? नहीं नहीं, एक बड़ा अमीर आदमी लेकिन खपती सा, अहमक सा एक आदमी है, और वो हमाकतों का एक ज़ख़ीरा है। ਮੁੰਬਈ तो हमाकतें कर करके, हमाकतें करेगा तो कॉमेडी क्रिएट होती चली जाएगी। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ आप लोगों के साथ इसकी दुश्मनी है, आप एक दूसरा ग्रुप है। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਬੀਚ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਸੋਚੋ। यानी कि मैं अमीर आदमी है तो कच्चे जा तुसी गरीब हो तो ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ वैसे हमने बब्बू को एक दफा पेंट करवा के पेश किया हुआ है वाह, जब कोरोना हमने उसे कोरोना बनाया था, और तुम भी थे। हाँ जी सर। अच्छा जी, अब आ जाइए सत श्री अकाल। हाँ जी। सत श्री अकाल। सत श्री। सत श्री या सत श्री अकाल, श्री भी और श्री भी एक ही चीज है। दैट मीन्स गॉड। वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने भगवान खुदा के लिए। सत मीन्स सच, सच्चाई। श्री या श्री इज गॉड। गॉड। अकाल मीन्स इन्फिनिटी, नेवर एंडिंग, जिसका कोई अंत ना हो। यानी खुदा की खुदाई कोई एंड नहीं। बेअंत है, इट इज एंडलेस। इनके अपनी जुबान में हर बंदा सलाम ही कर रहा है। ग्रीट करते हैं जैसे आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा। अच्छी। और ये जो हमारा प्रोड्यूसर है ना अपना फहीम, निहायत नालायक है। अच्छा जी। ਕੀ ਹੋਇਆ? देखो सारे कागज गड़बड़ कर दिए, मैंने किसी काम के लिए रखे थे, वो बीच में कर गया। अच्छा, सत्य सच, और एक इसकी बड़ी खूबसूरत मैनिफेस्टेशन है दो सत्य। यहाँ दो सत्य यानी दो सच्चाइयां मिले तो दोस्ती कहलाती है, वाह। दोस्त बन जाता है। कुछ लोगों ने इसको नेक्टर के मानों में भी लिया है। सत्य मीन्स नेक्टर, कुछ रस होता है ना फलों का, फूलों का, उसको नेक्टर बोलते हैं। तो वो जो मिक्सचर है उसका, तो दो मिक्सचर जब मिलते, हनी टेस्टिंग मिक्सचर जब मिलते हैं तो वो दोस्ती कहलाती है। अच्छा, दुश्मन क्या है, ये आपका टेस्ट है। इनाम मुकर्रर करूं? मैं बताऊं? नहीं, आप नहीं, मैं भाईजान से पूछ रहा हूं, और इसकी सजा भी है अगर आपने गलत जवाब फिर दिया। रहन दो। मैं बताऊं सर? हाँ जी बताएं। खस वो जब- खस्म है। वो खस्म का एक मानी है हाँ। दुश्मन। तुझे देखा ना दशक में खस। अच्छा जी, आप बताइए। दुश्मन। हाँ, दुष्ट मीन्स गंदा, गंदा। खराब, बुरा, मन। मन अंदर। वाह। याद आया बब्बू? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाय, तुम्हारे अच्छा, अंदर मैं एकदम से पहले बोल पड़ी ना दुष्ट, तो उन्होंने ते नहीं सुना था, तो वो कितनी देर से दुष्ट दुष्ट लग रही है। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ हाँ, ਰਿਹਾ वो ना वो दुष्ट दुष्ट कर रहा है। दुष्ट मन, दुष्ट मन, ਗੰਦੇ ਮਨ ਵਾਲਾ। गंदे मन वाला। अच्छा जी, आज का शेर इरशाद। अच्छा, बहुत जल्दी नहीं आ गया मुख्तसर। तो थोड़े और अल्फाज कर लेते हैं। वो बस ठीक है होर कर लेते हैं की गल ਬਹੁਤ ਸਮਝ आ गई चले एक दो लफ्ज और। ਸਿੱਖ ਲਿਆ बैक जबान कादे लई। मैं सिੱਖ लिया काफी कुछ बस ठीक चले जी, आज का शेर। मैं कहता बागी ना हो जाए इससे। ओह, मुजफ्फर इकबाल साहब का बहुत खूबसूरत शेर। कहते हैं,
ये क्या कि सुबह को रह जाए फिर भी तू बाकी, ये क्या कि सुबह को रह जाए फिर भी तू बाकी, मैं अपने आप से शब भर तुझे निकालता हूँ। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि ये जानने के बाद कि उसका बेटा जराइम पेशा है, खातून ने खुद ही पुलिस बुला ली। अच्छा फैसला की था। तो सर ये कहाँ का वाक़या है? ये महम मुल्तानी साहिबा ये वाकया बरतानिया का है। खजूरा कटाओ। और मैं सोनिया मुल्तानी को पता क्यों मिस कर रहा हूँ? क्यों सर? आपने उसके शोज नहीं देखे। ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ सारे रंग पंजाब दे। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और उसकी वजह वो कह सकती है साईं ਤੁਹਾਡੀ दूरी दा फैज है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਪਤਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਜੀ। बेहतरीन ਨਾਗੀ कर ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। नागी बेहतरीन है। अच्छा जी, ये बरतानिया का किस्सा है। तो सर ऐसा क्या जुर्म किया था उसके बेटे ने? वो कहती है कि मैं इत्तेफाक से इसका फोन देख रही थी कि ये फोन घर भूल गया। देन आई रियलाइज्ड कि इट्स एन ओल्ड फोन। ओके। तो मैंने कहा किसी काम ही नहीं आ रहा, तो मैं चेक किया तो खुला हुआ था, अनलॉक था, यानी पासवर्ड नहीं लगा। पासवर्ड नहीं लगा हुआ था। और उस इडियट को याद ही नहीं रहा कि इसमें से कुछ मैसेजेस डिलीट भी करने थे। वो जब पढ़ने लगी ना, उसने कहा मैं देखूं सही मेरा बेटा है, आई हैव टू कीप एन आई ऑन हिम। तो वो बहुत बड़े कार्टेल का हिस्सा था, एक रैकेट था मनशियात फरोशों का, और उसका बड़ा अहम मेंबर था। उसने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस ने कहा कि इसके साथ तो जो होगा सो होगा, आपने कितनी बड़ी नेकी की, ये पूरा रैकेट पकड़ा गया, क्या ये बात पूरा गैंग पकड़ा गया, 5-5 साल के लिए अंदर जाएंगे। वो कहती मेरे लो 20 साल अंदर जो शख्स जहर फरोशी कर रहा है। देखिए ये होती है रोशन ख्याली, क्या बात। ये होता है रोशन दिमाग होना। और यानी हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में हम सब कुछ देखते हैं और पर्दा पोशी करते हैं। सबसे पहला पर्दा पेरेंट्स डालते हैं अपनी औलाद पर। डॉक्टर साहब अक्सर बताती जी हैं साहब। कि हॉस्पिटल में अगर कोई केस आ जाए तो वो कहते हैं जी वजह जो भी है, लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं करनी ये रीज़न। तो चलिए डिस्क्लोज तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके अपने घर में रिकॉर्ड जाना है तो वो कहते हैं डिस्चार्ज शीट पे डायग्नोसिस भी ना लिखें। हाँ वो भी ना लिखें। ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਨਵੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ। चोरी वैसे ही बुरी आदत है, ये करनी नहीं चाहिए। टोक्यो में एक वाकया कर हुआ। लेनी चाहिए। करनी नहीं चाहिए। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇਸ ਕੋਲ ਸਰ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਿੱਚ ਬਸ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਸੌ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਖਾना खराब ना होवे। तो आपको मैसेज पढ़ना कौन सा आता है जो आप पासवर्ड लगाएंगे? ना करना आता ना पढ़ना आता। ਕੋਈ ਤੇ ਪੜ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈਣ ਹੋਇਆ ਥੱਥ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਥੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਲੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਸਿੰਪੋ ਆਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧੋਣਾ ਬਸ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦੇ 70 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀ ਬੋਲਦੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਜ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਖਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੜੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਖਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। अच्छा मैं भी कहा पिछले दिन सखाब साहब पिछे बहते उन्हें कितने विछा लेना ही। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ सखावत भाई नहीं आए। आजकल तो सखावत भाई सबसे पहली रो में बैठते हैं। आजकल ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ। अच्छा ये इस ड्राइवर की बात हो रही है। और ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ सलीम भाई अपने ਉਹ ਜੀ ਉਹ आज मैंने देखा काफी ख्वार होते रहे। अच्छा सर, वो जो जिस कंपनी की वो गाड़ी चलाते हैं ना, उसका जो मेन बंदा है ना, जो हेड है वहाँ पे, वो शेखुपुर का है। वो मेरा जानने वाला है और मेरा दोस्त है, इसलिए वो ज्यादा मेरी केयर करता है। अच्छा हाँ जी। ਉਰਦੂ ਚ ਸਖਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਦੇ अभी को आई अंदर लो मीरा जागी। ਨਹੀਂ ਸਖਾਬ ਸਾਹਿਬ सर ਆਪ आप एडे अच्छे डांसर ने ना हनी साहब, आदत ही वो ने।
भैया मैं तो ब्रेक डांस करता हूँ ना, मैं ਘੋੜੇ वो ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ आपने भी एक मिनट क्वाड बाइक पे कल किसने ये हरकत की थी? ਮੈਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਬਹਿਣਾ मेरे पास वीडियो मौजूद है, ड्राइवर के पीछे बैठे थे। क्वाड बाइक में कितनी जगह है, ड्राइवर के पीछे बैठे थे और दोनों टांगे ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ और इन्होंने ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। और इन्होंने जान के नहीं किया था। और हनी ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਐਸਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ नहीं मैं ब्रेक डांस करता हूँ भाई, मैं तो अभी कहाँ करते रहे, हमने नहीं देखा। मैंने तुम्हें जब भी देखा है ना डांस, वही था जो इस तरह का करते हैं ना। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦਾ ਡਾਂਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ और मैं माइकल जैक्सन का डांस करता रहा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਤੇ ਗਿਆ ਓ ਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ फिर कर रहा ਸਾਰਾ ਮੈਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲ ਮਛਲੀ ਨੇ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ वैसे वाकई डॉल्फिन डांस है ये। शीशा चलाएं, शीशा है शीशा वो ये अब जगह छोड़ दी। ਐ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ अच्छा शकील साहब ने किया। अच्छा साडे ना हल्के हल्के तमाशबीन मौजूद ने। ਟਨ 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 कहने में ना ਆਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੂੰ ਤੇਰਾ دیਵਾਨਾ शाहजहां को है बताना ਓ ਬੇਬੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ तेरी गल तू नहीं सुनती। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ वो ये जगह नहीं। ਆਹਾ ਵਾਹ 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 ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਚੱਲਦਾ ਉੱਤੋਂ ਬਾਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ यार जिस तरह बलूगा वेल को फांसी लगी होती है